everyone. So we are back on this channel with another lecture in the series of Economic and Financial Affairs. This lecture will also talk about all the general awareness topics which are required for the preparation of UPSC, RBI Grade B and SEBI Grade A examination. So we'll be starting with the articles of November month. But before that, I would like to tell you that Ruhi ma'am is one of the recognized educators on Unacademy. There she handles all the SEBI Grade A and RBI Grade B examination courses. Okay, you can access all her courses by using the code SC10. By using this code, you will get a discount of 10%, and also you should go for the enrollment right now. So these are the courses which are basically handled by her on Unacademy Plus. You can get the subscription, and do not forget to use the code SC10 when you are going for the subscription. These are some other educators who would also take the courses on Unacademy for RBI Grade B examination. You should use the code SC10 for accessing all the contents which are available for free on Unacademy, like the videos, the PDFs, mock and discount. All the things that you are accessing on Unacademy, whenever they ask you for the invite code, just use the code SC10, and through that you would be able to avail all of those tests and videos and other materials. Now this is the Telegram group Simple Concepts by Ruhi ma'am, where you would be able to access all the contents and the material which are related to your examination. So now let's get started with our articles. So the very first article is sugar industry. Okay, we will be talking about sugar industry in this particular article. तो इसमें अभी ये बोला गया है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट सब्सिडी की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ एक्सपोर्ट सब्सिडी. ओके, सो एक्सपोर्ट सब्सिडी इज़ नथिंग बट इट्स जस्ट that they are asking for some discount whenever they are exporting anything from India to other countries. Okay, so that is export subsidy. So that's about it. Now the thing is, Union Commerce and Industrial Minister Piyush Goyal announced the central government is not considering an extension of its export subsidy for the 2020-21 शुगर सीजन. ठीक है, तो जो 2020 और 21 का जो शुगर सीज़न है वहाँ पे जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जाती हैं दैट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू द शुगर इंडस्ट्रीज़. अब ऐसा क्यों किया गया है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल. सो द इंडस्ट्री नाउ हैज़ वार्न्ड ऑफ अ वर्टिकल कोलैप्स इन द सेक्टर. अगर उनको सब्सिडीज़ नहीं दी जाती हैं देन द ट्रेड विच आर कैरीड आउट बाय शुगर इंडस्ट्री वुड कोलैप्स. ओके, सो दैट इज़ अबाउट इट. क्योंकि अब देखिए, जब उनको सब्सिडी की ज़रूरत है दैट मीन्स दे वांट टू एक्सपोर्ट. व्हाई डू दे वांट टू एक्सपोर्ट? दे वांट टू एक्सपोर्ट बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक अवेलेबल. Okay, now that they have fulfilled the in domestic market, now they want to go for the international market as well, and for that they need transportation. तो transportation के लिए sugar industries export subsidy मांग रही हैं. Okay, so that is about it. Then why is sugar industry rooting for exports even before the start of season? Fine, अभी the thing is that कि जो शुगर सीजन है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है. देन व्हाई आर दीज इंडस्ट्रीज आस्किंग फॉर एक्सपोर्ट सब्सिडीज? ओके, व्हाई आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंटरनेशनल मार्केट्स इवन बिफोर द मार्केट हैज स्टार्टेड? सो द थिंग इज दैट at the start of October-November sugar season, the industry draws up its balance sheet and takes its consideration the expected production, the carry forward stock of last season minus domestic consumption and exports if any. Okay, so हम इसको बहुत easy तरीके से समझते हैं. The thing is that कि बैलेंस शीट जो है शुगर इंडस्ट्री की वो उन्होंने प्रेजेंट की है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द बैलेंस शीट? So the very common definition is that balance sheet is nothing but the snapshot of any company's financial situation. आपकी कंपनी जो है अगर वो बैलेंस शीट शो करती है दैट मीन्स दैट इज़ द स्नैपशॉट ऑफ योर फिनेंशियल कंडीशन.
तो बैलेंस शीट किसी भी इंडिविजुअल एंटरप्राइज या किसी भी इंडिविजुअल सेक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है, ये होती है बैलेंस शीट. Okay, so the very first question that should arise in your mind is that whether it is only for government sectors, like only government sectors would be having balance sheet. The thing is that no. Okay, any private company, then the government company, okay, partnership अगर हो किसी की, ओके, पार्टनरशिप, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, सबको अपनी बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है. Okay, everyone has to show balance sheet, and based on that the person would be able, like the firm which is showing the balance sheet, whether it is in profit or it is in loss, ये बैलेंस शीट से ही पता चलता है किसी भी कंपनी की. ओके, सो दिस इज अबाउट दैट. नाउ द थिंग इज़ दैट कि ये सीज़न से पहले ही क्यों एक्सपोर्ट सब्सिडी मांग रहे हैं, तो इसका रीज़न बैकग्राउंड में जाके पता करेंगे. क्योंकि इससे पहले जो सीज़न आया था उसमें भी गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्रीज़ को प्रॉमिस किया था दैट दे वुड बी प्रोवाइडेड विथ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, बट द सब्सिडीज़ वर नॉट रिलीज्ड. ओके, द सब्सिडीज वर नॉट रिलीज. दैट मीन्स जो शुगर इंडस्ट्रीज है, जो पहले गवर्नमेंट के भरोसे पे उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उन्होंने मैन्युफैक्चर बढ़ा के एक्सपोर्ट किया इंटरनेशनल मार्केट में. नाउ हाउ डू दे पे टू द लेबरर्स, टू द इक्विपमेंट्स दैट दे हैव बोरोड. ओके, नाउ दे हैव मोर लायबिलिटीज. ठीक है, उन्होंने बोरो करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में सप्लाई की, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको वो पैसा जो प्रॉमिस किया था वो दिया नहीं. तो उन्होंने कहाँ से ये बोरो किया होगा? दे हैव टेकन लोन्स फ्रॉम बैंक्स. ओके, नाउ द बैंक्स आर आस्किंग फॉर मोर इंटरेस्ट. तो ये जो एक प्रोसेस है, इसमें जो शुगर इंडस्ट्री है उसके ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स. Okay, we will understand that also, but here the thing is that the balance sheet is basically considering the expected production, the carry forward stock of last season, fine, and the minus domestic consumption and exports. Okay, so it is about the balance sheet. In case of unusually high stock, so here the thing is that the sugar industry is having so much of stock that it is not even able to supply to the international markets. क्यों नहीं सप्लाई कर पा रहा? बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज. तो जो हाई स्टॉक्स हैं, एक्स मिल प्राइसेस लो हैं, okay, for the present season as well as for the upcoming season, which result in liquidity crisis for the sugar sector. तो जो हमारा शुगर सेक्टर है इंडिया का, वो लिक्विडिटी क्राइसिस में जा रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज liquidity crisis. Okay, we'll understand that what is liquidity crisis. So liquidity crisis means shortage of liquid. And what is liquid? Liquid is basically the ease with which the assets could be converted into cash. आपके पास कोई भी एक चीज़ है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं. सो लिक्विड जो आपका कैश है उसी को यहाँ पे आप समझ के पूरे सिनेरियो को समझ सकते हैं. ओके, सो हियर लिक्विडिटी क्राइसिस मीन्स drying up of liquidity. Okay, dried up liquidity. So it is about that. So the liquidity crisis basically शुगर सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जितनी भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनके पास जो भी एसेट्स हैं, ओके, उनके पास जो भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़, ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ. बट द थिंग इज़ दैट जो एसेट्स हैं उनके, जिनको वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, सो इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं. तो वो प्रोसेस जो है कैश में कन्वर्ट करने की, अब वो उतनी ईजिली नहीं हो पा रही है, बिकॉज देयर इज़ सो मच स्टॉक which is available, which is lying over there without any use, then the low prices. ओके, जब तक आप उनके एसेट्स को, अगर वो अपना एसेट्स बेचना भी चाहें,
ओके अगर वो अपना एसेट बेचना भी चाहें तो उनको एक रीजनेबल प्राइस मिलनी चाहिए उनके एसेट्स की. फाइन. सो एसेट इज बेसिकली हियर. लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ एसेट. हियर एसेट मीन्स जो भी चीज़ें, ओके, ऑल द थिंग्स, all the you know all the things which are present in the company's interest, which are basically owned by company, and whenever they want the things to be sold, they can get cash instead of that, or they can accomplish all their desires. अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं उन एसेट्स को बेचकर, वो स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, वो अपने कंपनी के एसेट्स को बेचकर किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं, इट इज़ अप टू देम ओनली. सो एसेट्स कंपनी के ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो कंपनी ओन करती है, समथिंग विच इज़ ओन्ड बाय कंपनी ओनली. एंड लायबिलिटीज इज समथिंग विच द कंपनी ओज. ओके, ओज मीन्स उसने किसी और से बोरो किया है. जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में एसेट का मतलब समझाती हूँ. वॉट एवर द कंपनी कैन सेल, बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू गेट सम बेनिफिट एज कैश और एज एनीथिंग एल्स. ओके, so whatever it is going to sell, and the payments would be made to the company. That's why these are called the assets. Then the liabilities are the debts. Debts मतलब जो भी चीज़ें उसके ऊपर उधार हैं. The payments which the company has to made to some other creditor. So that is liabilities. उसने कितना लोन ले रखा है वो liability हो गई. कंपनी कितनी चीज़ें बेच रही है बनाकर, कितना उसका मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दैट मीन्स उसके एसेट्स उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं. मान लीजिए किसी कंपनी ने एक ऐसी हैवी मशीन खरीदी है जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है, देन इट इज़ द एसेट ऑफ द कंपनी. whereas the loan which the company has taken from the bank to run its business, वो उसका डेथ हो गया, उसके ऊपर उधारी हो गई, तो उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं. तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो बढ़ रहा है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर. दैट मीन्स जो भी एसेट्स अवेलेबल हैं कंपनी के पास वो उसको बेच नहीं पा रही है, एज कैश उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं बेच पा रही है? देयर आर टू रीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो इनफ बायर्स नहीं है, and even if there are buyers, then the buyers are not paying the reasonable prices. So these could be the two reasons. So these are some of the data, like export of at least 50 lakh ton of sugar, then the opening stock would be 105 lakh ton, providing the mills a healthy inventory as well as liquidity from export. Okay, so yeah, we were talking about liquidity. In financial economics, a liquidity crisis refers to an acute shortage of liquidity. Liquidity means how easily the assets could be converted into cash. Liquidity, there are three kinds of liquidity. First one, it could be market liquidity. That means the ease with which the asset can be converted into liquid medium. And what is liquid medium? It is cash. Then second one is funding liquidity. Funding liquidity is the ease with which borrowers can obtain external funding. Then the third one is accounting liquidity. तो ये जितना ज़्यादा हेल्दी बैलेंस शीट प्रोवाइड करेगी कंपनी, शो करती है अगर उनका जो बैलेंस शीट है इट इज़ in line with the healthy institutions, then it is called the accounting liquidity. Okay, in terms of cash like assets. So why are mills reluctant to export sugar without a government subsidy? Okay, so the question is that कि mills को ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट सब्सिडी की. ओके, सो द थिंग इज दैट जो प्रोडक्शन में कॉस्ट लग रही है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट्स. ओके, एंड सो दे वांट द कॉम्पेंसेशन टू बी मेड बाय गवर्नमेंट. फाइन, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इफ यू आर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ओके, these sectors are paying taxes, heavy taxes to the government, and because of which the government of India is earning it through international trade.
तो अगर उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो उनको प्राइस मिल रहा है उससे ज़्यादा है, इसका मतलब उनका नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ही वो सब्सिडी चाहते हैं। एज कॉम्पनसेशन वो गवर्नमेंट से सब्सिडी मांग रहे हैं। जैसे कि वो 21-22 पर केजी, ओके, 21-22 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट उनको इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है, वेर एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 32 रुपीज़। सो उनको नुकसान हुआ, 10 रुपये 11 रुपये का उनको नुकसान हो रहा है। तो वो ये चाहते हैं कि ये 10-11 रुपये उनको गवर्नमेंट के थ्रू एज सब्सिडी प्रोवाइड किए जाए। Okay, so the basic point is that because of price mismatch, the government is ready to pay the subsidy, although it has promised, but it has not released yet. Okay, so it is that. Ironically, mills are facing this problem at a time when Indian sugar has made its mark in the international market. Okay, international market में जो Indian sugar है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर उसको सप्लाई और उसकी डिमांड हो रही है। बट द थिंग इज दैट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज सिनेरियो, द अदर साइड इज दैट द मिल्स इन इंडिया दे आर क्लोजिंग डाउन. Why? Because their liabilities have grown up much more than the assets of the mills. सो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की जो मैं बात कर रही हूँ. ओके, okay, then the conclusion. But before conclusion, there is also a piece of information that in the last season, okay, we as I told you that it is something related to background, so I would like to tell you that in the last season the subsidy program was offered by central government to these mills. But although that the transport subsidy was promised, but it was not released. सो उन्होंने जो मिल्स थी उन्होंने बैंक से लोन लिए. अब वो बैंक से लोन लेने के बाद उन्होंने एक्सपोर्ट को कैरी ऑन किया. बट द थिंग वॉज दैट जब गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी नहीं दी तो बैंक्स को लोन तो चुकाने पड़ेंगे. नाउ दोज मिल्स आर पेइंग हैवी इंटरेस्ट टू द बैंक्स, वरना उनकी कंपनी बंद हो जाएगी. क्योंकि कोलेट्रल देते हैं ना अपन, जब बैंक से लोन लेते हैं तो कोलेट्रल दिया जाता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, वरना बैंक उनको लोन कैसे दे दे. फाइन. सो नाउ द थिंग इज दैट एज कॉम्पनसेशन बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंटरनेशनल प्राइसेस, the mills are asking for subsidy from government. Okay, so this is about that. And also there is the thing is that all the things, these are handled by Ministry of Food and Civil Supplies. You should take note of that it is something which is handled by Ministry of Food and Civil Supplies. Okay, now let's come to the conclusion. While the government's move to encourage mills towards ethanol production is certainly welcome, it would require more capital and time. So my question is, why government is encouraging mills to produce ethanol? Okay, the thing is that ethanol is produced from sugar mills only. फाइन. केमिकली शुगर मिल से ही एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कुछ डाइवर्जन्स करने पड़ते हैं हमें प्रोसेसेस में, सो उससे ही एथेनॉल प्रोड्यूस होता है. एंड दिस एथेनॉल इट इज़ एन एडिटिव फॉर स्टैंडर्ड पेट्रोल. फाइन. जो आपके स्टैंडर्ड पेट्रोल है, इफ़ यू आर यूजिंग एडिटिव इन इट, ओके, एडिटिव एथेनॉल को बोल रहे हैं हम यहाँ पे. सो इफ़ यू आर यूजिंग इट इंस्टेड ऑफ MPBE, MPBE एक ऐसा केमिकल होता है जो हम स्टैंडर्ड पेट्रोल में मिक्स करते हैं. बट व्हेन वी मिक्स दिस MPBE, देन देयर आर हाई चांसेस फॉर वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन, एंड देयरफॉर वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर केमिकल, एंड इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ एथेनॉल. सो इट इज़ आस्किंग फॉर प्रोड्यूसिंग इट. तो जो एथेनॉल है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल्स. ओके, बायोडीजल्स इज वन थिंग विच विल नॉट कॉज मोर पोल्यूशन. ओके, इट वो कंपेरेटिवली वो लेस पोल्यूशन कॉज करेगा एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड पेट्रोल. सो द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द यूज ऑफ एथेनॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल. For the current season, in case exports are not made viable,
not only will India lose its market share, but mills will certainly feel the liquidity crunch. So I have explained what is liquidity. Okay, we have also talked about what are the assets and liabilities, and we have also talked about ethanol. In short, we have covered the entire scenario which is covering the sugar industry. Okay, now let's move forward. International Financial Services Centers Authority Banking Regulation 2020 approved. So here we are talking about IFSCA. ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। तो अब ये IFSCA क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये एक ऐसी कमिटी है जो कि रेगुलेट करती है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को। ओके, वहाँ पे जितने भी बिजनेसेस आपके रन कर रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ओके, IFSCA बनाया गया है। सो व्हाट आर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस इंक्लूड, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो there are some proposals which have been made by IFSCA, so we will study them. But before that, let's discuss that what is the role of IFSC. तो IFSC आपके जितने भी इंटरनेशनली फिनेंसेस इंडिया में किए जाते हैं उनको हैंडल करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि बाहर से जितना भी पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ पे लगाना है, ठीक है, वो पैसा किस जगह पे परमिटेड है फॉर द यूज़, तो वो सारी जो भी टेक्निकलिटीज़ हैं उनको हैंडल IFSC ही करता है। ओके, सो इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच बेसिकली हैंडल्स ऑल दीज थिंग्स। सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ गिफ्ट सिटी। आपने काफ़ी सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, गिफ्ट सिटी। ओके, गुजरात में है, इसको हम गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक बोलते हैं। ओके, गिफ्ट सिटी, सो इट इज़ बेसिकली इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी, गिफ्ट सिटी। So it is about that, and this has been made in the on the lines of London, Hong Kong, Dubai, Singapore. Okay, जैसे ये places पे financially stability मैनेज की जाती है, उसी तरीके से इंडिया में गिफ्ट सिटी में इस उन्हीं के लाइंस पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करना चाहते हैं। दैट हाउ, आपने सुना होगा कि स्विस बैंक में लोगों का पैसा जमा होता है, लंदन में लोगों का पैसा होता है, दुबई में पैसा होता है। तो ये बेसिकली वही चीज़ है कि जो भी वहाँ, मान लीजिए बाहर से कोई बंदा है वो इंडिया में पैसा लगा रहा है, उसका पैसा कहाँ है, वो एक ऐसी ही इंस्टीट्यूशन है जो यही सारी चीज़ों को वॉच करती है। सो दैट इज़ IFSC। ओके, तो अब इसके क्या क्या सेलिएंट एस्पेक्ट्स हैं हम वो देखते हैं। लेइंग डाउन द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप IFSC बैंकिंग यूनिट्स, परमिटिंग पर्सनस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो भी लोग रह रहे हैं उनका नेटवर्थ जिनका $1 मिलियन से ज़्यादा है, ओके, $1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग अर्न कर रहे हैं, दे शुड बी अलाउड टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी ऑफ IFSC बैंकिंग यूनिट्स। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए कोई लंदन में रहता है someone and he is earning more than $1 million. Now that person is allowed to open his account in India एट IFSC बैंकिंग यूनिट्स। तो जैसे वहाँ पे रहने वाले लोगों को बोलेंगे अरे इसका पैसा तो इंडिया में डला हुआ है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं हम इसका पैसा तो स्विस अकाउंट में पड़ा हुआ है। सो दिस इज दैट ओनली, उसी के टर्म्स में आप इसको समझ लीजिए। ओके, परमिटिंग पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया having net worth not less than $1 million to open foreign currency accounts in any freely convertible currency at IBUs to undertake any transaction under the liberalized remittance scheme of the RBI. So I hope you understand that what is remittance. We have already discussed कि अगर मान लीजिए कि आपकी फैमिली में से कोई भी एक पर्सन दुबई में काम करता है, देन वॉट एवर ही इज़ अर्निंग देयर, और उसकी जो भी सेविंग्स हैं जो वो अपनी फैमिली के लिए भेज रहा है यहाँ इंडिया में, सो इट इज़ अकाउंटेड एज रेमिटेंस। सो
दैट सेविंग्स वट एवर ही इज सेंडिंग आफ्टर स्पेंडिंग देयर, जो भी उसको ज़रूरत है उसके बाद वो जितना भी पैसा अपनी फैमिली के लिए भेज रहा है फॉरेन कंट्री से, दैट इज कंसिडर्ड एज रेमिटेंस. Okay, so it's that. Now, laying down the permissible activities of IBUs including credit enhancement, credit insurance and sale, etc. Permitting the authority to determine business that a banking unit may be permitted to conduct in INR with persons resident in India and persons resident outside India. So these are some of the things which they are allowed to do in India and what they are not allowed to do in India. And all of this would be done under the government of India in due course. Okay. Pakistan PM launches CPEC city project. So the very first question here arises is that what is CPEC? Okay, we need to know that what is CPEC is nothing but the China Pakistan Economic Corridor. तो जो चाइना है, आपको पता है कि चाइना का मेन काम क्या होता है. चाइना हमेशा उसका जो BRI होता है, चाइना का एक ऐसा बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है जिसके अंडर वो वेरियस कंट्रीज में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं. ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. सो सीपेक सिटी एक प्रोजेक्ट है जिसको चाइना ने स्टार्ट किया है. उसमें एक मेगा सिटी बनने जा रही है इन खैबर पाख्तूनख्वा प्रोविंस, जहाँ पर कमर्शियल जोन्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, द सेक्टर्स फॉर एजुकेशन, अपार्टमेंट्स, गोल्फ कोर्स, थीम पार्क एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी. ओके, सो इट्स अबाउट दैट. Then the $60 billion CPEC connecting China's resource-rich Xinjiang province. What is something very infamous about Xinjiang province? The thing is that वहाँ पे Uyghurs मुस्लिम रहते हैं, जिसके ऊपर चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगते आ रहे हैं कि उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ Uyghurs मुस्लिम को कन्वर्ट कर दिया है. ओके, उनको कैंप्स में रख रहे हैं. सो देयर आर एलिगेशंस. तो वो जिंजियांग प्रोविंस में ही रहते हैं, तो वो एक रिसोर्स रिच प्रोविंस है. एंड सीपेक सिटी बेसिकली, सीपेक कनेक्ट्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है. चाइना और पाकिस्तान का पूरा ट्रेड उसी के थ्रू होता है. तो जिंजियांग चाइना का और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो बलूचिस्तान में है, वो दोनों को कनेक्ट करता है और इसके थ्रू चाइना अपनी सारी फैसिलिटीज़, अपने सारे ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को कैरी आउट करता है थ्रू दिस पोर्ट ओनली. सो देयर इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे पाकिस्तान ने इंडिया को अलाउ नहीं किया है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से ही जो ईस्ट है हमारा, ओके, मिडिल ईस्ट है, उसके वहाँ पे एक्सपोर्ट्स और ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे. एंड ऑल्सो जो आपका ईरान है, आपका अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तो ये सारे कंट्रीज़ में इसी पोर्ट के थ्रू ट्रेड किया जाता है. सो पाकिस्तान हैज़ नॉट अलाउड इंडिया टू डू ट्रेड फ्रॉम हियर. सो the country Iran, okay, Iran has provided access to चाबहार पोर्ट. हमारे पास ग्वादर पोर्ट नहीं है, लेकिन ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट की एक्सेस दे रखी है, जहाँ से इंडिया अपने जो भी इनिशिएटिव्स है वो ले सकता है रिगार्डिंग ट्रेड. एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प अफगानिस्तान इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. ओके, एंड ऑल्सो द प्रोजेक्ट्स विच आर करेंटली रनिंग देयर, तो वो हम चाबहार पोर्ट के थ्रू करते हैं. So here which particular bodies it is doing this project, like which particular body is doing this project? It is BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ही चाइना का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो करती है आउटसाइड चाइना. एंड ऑल्सो लाइक जैसे हमारे यहाँ ब्रो है, ब्रो मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये it's that kind of body. India has objected to CPEC as it is being laid through Pakistan occupied Kashmir. Now India इस चीज़ का रिजेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, क्योंकि वो POK से पास हो रहा है. CPEC जो है वो POK से पास हो रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डोर फॉर चाइना टू एंटर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से POK से पास हो रहा है तो चाइना के पास मौका है कि इंडिया को
यहाँ से हम एक थ्रेट, एज अ थ्रेट हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। Okay, fourth one is China suspends Ant Group IPO in Shanghai, Hong Kong. So we are talking about Ant Group. Ant Group is nothing but it is the, it is something which is the affiliate company of Chinese Alibaba. ओके, चाइनीज़ अलीबाबा जो जाकमा आपके ओन करते हैं, तो उसी का एक एफिलिएट ग्रुप है एंट ग्रुप। अब उसके आईपीओ की बात हो रही है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? सी, अगर कोई भी कंपनी है, वो कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं, ओके, या फिर उसके पास जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर वो अपने स्टॉक्स को पब्लिक कर देता है, इट रिलीजेस ऑल ऑफ इट्स स्टॉक्स फॉर द रिटेलर्स। ठीक है, अगर जितने भी स्टॉक्स है उस कंपनी के, कोई भी रिटेलर खरीद सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीद सकता है, तो उसको हम आईपीओ बोलते हैं। सो चाइना हैज सस्पेंडेड एंट ग्रुप आईपीओ इन शांघाई, हांगकांग। सो द क्वेश्चन राइज इज दैट व्हाई चाइना हैज सस्पेंडेड आईपीओ। ओके, जो हमारी एंट ग्रुप है, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी। फिनटेक मतलब जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं चाइना में, वो अलीबाबा जो आपकी एंट ग्रुप है उसी के थ्रू होते हैं। सो इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिनटेक, द मोर नंबर ऑफ यूजर्स इट हैज़। ओके, सो इट डिलीवर्स बेसिकली द ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये चाइना ने क्यों रोक दिया? सी, द रीज़न कुड बी दैट चाइना जो है वो एंट ग्रुप के जो एसेट्स हैं उनको नहीं चाहता था कि वो बेचे। ओके, क्योंकि ऐसा है कि इसका मतलब ये है ना दैट द लायबिलिटीज ऑन चाइना इज इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट्स व्हाई चाइना डजंट वांट द एंड ग्रुप टू सेल ऑल ऑफ इट्स आईपीओ, all of its stocks. So this is very simple point that the capital of China is Beijing and the currency, it is to be remembered that it is renminbi. Okay, हमने पहले याद किया था येन होता है चाइना की करेंसी, युआन होता है, ये सब हमने याद किया था, जापान, चाइना, येन, युआन। It's not like that. Now the currency has been converted to renminbi. Then Greek island goes electric with Volkswagen transport deal. तो ग्रीस में एक आइलैंड है, ओके, जिसको लेकर फोक्सवैगन कंपनी जो आपकी कार बनाती है, ओके, व्हीकल्स बनाती है, एंड ग्रीस गवर्नमेंट दे हैव साइंड अ MOU फॉर द प्रोजेक्ट ऑन एजियन आइलैंड ऑफ एस्टिपालिया। ओके, आइलैंड ऑफ एस्टिपालिया है ग्रीस में, वो उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल आइलैंड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? वहाँ पे सारे जितने भी व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल होंगे, उन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड ऑल्सो राइड शेयरिंग सर्विसेज टू द आइलैंड. So important fact to be remembered here is that the first modern Olympics were held in Athens, Greece in 1896. Then Bangladesh US launched joint naval exercise Karat Bangladesh. ओके, बांग्लादेश और यूएस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज हुई है, करात बांग्लादेश। ओके, दे हैव लॉन्च द कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। करात का फुल फॉर्म है कोऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। सो द थिंग इज that it is basically launched to expand relationships and broaden maritime awareness between the two countries. तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच कौन सी दो एक्सरसाइजेज होती हैं? लेट्स रिमेंबर these 2 points. बोंगो सागर एक एक्सरसाइज होती है, ओके, जिसमें आपका सी ड्रिल्स होता है और जितनी भी अदर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो सारी परफॉर्म की जाती हैं। और दूसरी है आपकी इंडिया बांग्लादेश कोर पाथ। What is core part? It is nothing but the coordinated patrolling. Coordinated patrolling. So patrolling along the international maritime बाउंड्री लाइन जो है उसके along पेट्रोलिंग करते हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों के शिप्स। Okay, so it reflects the priority Indian Navy accords to Bangladesh Navy as part of Prime Minister Narendra Modi's vision of security and growth for all in the regions, that is सागर मिशन। तो सागर मिशन जो है वो किस रीजन के लिए है? कौन से रीजन की बात हो रही है यहाँ पे? इट्स टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन रीजन। ओके,
So US approves sale of $600 million in MQ-9 armed drones to Taiwan. तो ताइवान को यूएस ने $600 मिलियन की एक डील करी है जिसमें वो MQ-9 जो आर्म्ड ड्रोन्स है वो उसको बेचेगा, ओके, एक्सपोर्ट करेगा. सो यूएस हैज अप्रूव्ड इट, बट इट हैज़ ऑल्सो दिस हैज़ चैलेंज्ड चाइना नाउ. देखिए चाइना और ताइवान है वो एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपनी तरफ लाना चाहता है, बट ताइवान वांट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट. ओके, the China doesn't want, China want one system and one country rule, whereas Taiwan doesn't want it. It wants that it should be one country, two system rules. ओके, दो गवर्नमेंट होगी. तो चाइना अपने आप को ताइवान अपने आप को चाइना से अलग मानता है. तो इसीलिए चाइना बोलता है कि ताइवान से आप कोई भी डील कर रहे हैं आपको पहले हमारे पास आना है. Okay, but the US went directly to China and it has done the deal. Now this has brought this is the apple of discord now between China and US कि आपने जो ताइवान है आपने उसको डील क्यों दी हमारी. So it's like that. The capital of China is Taipei. You should remember that. Then the Dubai to introduce facial recognition system on public transport. Dubai is all set to launch a facial recognition system on public transport to strengthen the security. This system has been launched on behalf of Global Expo exhibition to be hosted in Dubai in अक्टूबर 2021. तो ये जो है ये अब देखिए ये स्मार्ट जो हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम यूज़ करने लगे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उससे फेशियल रिकॉग्निशन हो जाएगा. और ग्लोबल एक्सपो एग्जीबिशन में इसको होस्ट किया गया है. ओके, वहाँ पे ही इसको लॉन्च किया गया था. ग्लोबल एक्सपो एग्जीबिशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ मीट वेयर there is increment in the awareness about the challenges which are faced by the humanity on global level. So there it is discussed that what are the challenges which are faced by humanity. China's first indigenous aircraft carrier is combat ready by 2020 year end. तो शानडॉग जो है वो चाइना का फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसने अब अपनी रेगुलर टेस्टिंग और ट्रेनिंग फिनिश कर लिया है. नाउ इट इज़ एंटिसिपेटेड टू बी कॉम्बैट रेडी बाय द एंड ऑफ 2020. तो दिसंबर आ गया मतलब वो रेडी हो ही गया. लियाओनिंग द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशनड इन चाइनीज नेवी हैज़ ऑल्सो फिनिश्ड द रेगुलर ट्रेनिंग्स. So the next point is FDI in telecom. So FDI is foreign direct investment. How much the companies which are there in the foreign they can invest in India and what amount of stakes they can own in the companies which are situated in India here. Okay, बाहर से आई हुई कंपनी इंडिया में किसी भी दूसरी कंपनियां जो इंडिया की है उसमें कितना स्टेक खरीद सकती है वो FDI कहलाते हैं. सो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 2480 crore rupees FDI in ATC Telecom Infra Private Limited. So the point here is that telecom में कितना % FDI हो सकता है? It has been now increased to 100% now. ओके, सो इसका मतलब ये इंडिया में जो भी एक कंपनी है टेलीकॉम की, नाउ द फॉरेन कंपनी कैन कम एंड हैव ऑल द स्टेक्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके, now ATC Asia Pacific Private Limited is looking to acquire 12.32 stake in ATC Telecom Infra Private Limited through the FDI route. FDI up to 100% is allowed in telecom services sector, wherein 49% under automatic route and beyond 49% through government. Okay, so 49% आप कंपनी के स्टेक खरीद सकते हैं कंपनी से, and the rest 49% you have to buy through government route subject to observance of licensing and security conditions by licensee as well as investors as notified by the Department of Telecommunications, that is DOT, from time to time. Okay,
Then Priyanka Radhakrishna becomes New Zealand's first ever Indian origin minister. So कमला हैरिस तो हमने देख पढ़ा ही है कि कमला हैरिस यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बन चुकी हैं. शी इज़ ऑल्सो एन इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर. And now here in New Zealand as well, Priyanka Radhakrishnan has become New Zealand's first ever Indian origin minister. New Zealand's new Deputy Prime Minister Grant Robertson has also become the country's first openly gay man to hold the role. Okay, New Zealand is really going very ahead of its time because the Prime Minister there, okay, she is a lady and again she has won another term. Okay, एक बार इलेक्शन वो जीत गई थी. अगेन शी हैज़ वन अनदर टर्म एंड शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द प्राइम मिनिस्टर देयर. And about New Zealand, the capital is Wellington and the currency is New Zealand dollar. So these are some of the facts about New Zealand. So I guess we have discussed everything that is related to the articles in the November month, and there are more to come. We'll be discussing them in the next part of the video. Till then, take care and keep learning with us. Thank you.